Okay, students. So first of all, we took a pre-introduction of the topic by referring to the different instances which were related to the legacy, to the prehistory of the struggles fought for freedom in different corners and niches of the world. Second, we took different examples, and first example was of a great personality named Nelson Mandela. And I think we took an example of Nelson Mandela by referring to his book, own written book, self-written book, that was Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. And I think in which we tried to understand the freedom as an ideal. Then after that, to understand freedom as an ideal, we took another reference, and another reference was of a freedom fighter from Myanmar, and the name of freedom fighter from Myanmar was Aung San Suu Kyi. So we took two references. After reading these two references and after reading their definition of freedom, how they tried to create a freedom, how they tried to inbuild freedom in front of the people as an ideal. So I think first of all, we took two topics in a very clear way. What is freedom is a different perspective. Second thing, what is freedom as an ideal is different perspective from what is freedom. क्योंकि freedom क्या है वो एक अलग बात है, but freedom एक आदर्श के रूप में क्या है वो एक अलग बात है. Obviously you are a human, it's good, but the question arises that whether you are a human as an ideal human or not. यानी कि एक आदमी तो वो भी है जो गलत पे गलत कर रहा है, जो आदमी सीधा हर चीज गलत कर रहा है, और एक आदमी वो भी है जो हर चीज को सही करने की कोशिश करता है. So there is a difference between any concept as it is and that concept as an ideal. कोई भी चीज एज एन आइडियल अलग होती है उसकी डेफिनेशन. एंड एज एन आइडियल यू कैन कंसिडर फ्रीडम एज योर ओन डेफिनेशन, एंड दैट डेफिनेशन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर अप्रोच टुवर्ड्स फ्रीडम इज, व्हाट योर attitude towards freedom is, what do you think about freedom, what do you think about freedom as a value, because freedom is a human value. So proceeding on further, after these two examples, we will come to the question, what is freedom? Yani ki we have taken three best topics related to freedom. First of all, legacy. Okay. After legacy, why it is needed. Third thing, we also studied that how much restrictions, with how much constraints it is needed. Yeah, restriction should be there or not there on freedom. Ye bhi humne padha. Then after that, we tried to understand freedom as an ideal, for which we took two references. One was of Nelson Mandela, second one was of Aung San Suu Kyi. Now the third topic, यानी कि अब हमने पूरी भूमिका तैयार कर ली है. We have completed the base. So now on that base we will try to make the building. We will try to make the I think कह सकते हैं monument of infrastructure, monument of concepts related to freedom. तो अब हमारा बेस तैयार हो गया. उस बेस के ऊपर हम फ्रीडम के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे एज अ फ्रीडम. So on the basis of the study above which we did till today, before this topic, what is freedom, हम freedom की एक basic definition समझते हैं. What is the basic definition of freedom? That basically हमें क्या समझ में आया अभी तक? That freedom basically is what? Freedom basically is a phenomenon where there are no constraints. यानी कि freedom is that where there are constraints absent. यानी कि फ्रीडम एक ऐसी ह्यूमन वैल्यू है जहां पर किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो, जहां पर कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं होते, जहां पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते. यानी कि बेसिकली इसको और थोड़ा सा हम शॉर्टली ब्रीफली इलेबोरेट करें तो हमें क्या समझ में आएगा. व्हाट इज फ्रीडम? दैट फ्रीडम एग्जिस्ट, यानी कि वेयर फ्रीडम एग्जिस्ट when there are no external restrictions, or when there are no external constraints, or when there are no external foundations on what? On the individual. Yani ki when external restrictions, foundations, constraints on the individual are absent, then we can say that freedom exists within that individual. Basically तो freedom हमें ये समझ में आ रही है. On the basis of this basic definition, we come to the other topic. We come to the next topic, which is two aspects of freedom. तो फ्रीडम की इसी बेसिक डेफिनेशन के बेसिस पर अब हम फ्रीडम के दो पहलू हैं उस पर विचार करेंगे या उस पर हम थॉट करेंगे या थिंक करेंगे. पहला एस्पेक्ट क्या है जो आप मुझसे पूछ सकते हैं? सर ये एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स आप बता रहे हैं कि फ्रीडम इज दैट वेयर देयर आर नो बाउंडेशंस, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर नो एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स. ये कहां तक ठीक है हमें समझ में नहीं आ रहा.
तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं भाई. व्हाट डज दिस मीन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस? व्हाट डज दिस मीन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कांस्टेंट्स? वैसे वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय प्रीवियस एग्जांपल्स. प्रीवियसली हमने इसी चैप्टर में दूसरे एग्जांपल्स के मीडियम से हमने ये फैक्ट पढ़ने की कोशिश की थी, बट नाउ वी विल ट्राई टू टेक इट इन सम अदर वे, directly relating to freedom. So first of all, try to understand first aspect of freedom, where it is being said that freedom is that where there is no external constraint, there are no external restrictions. First point, where an individual could be considered free if he or she is not subject to external controls. यानी कि इस सेंटेंस का मतलब होता है, किस सेंटेंस का, कि when external constraints are absent on the individual, then that individual is said to be free, or then freedom is said to be within that individual. इसका मतलब यह है कि जब कोई भी इंडिविजुअल, अगर हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल फ्री है, तो उस इंडिविजुअल को हम फ्री विथ फ्रीडम तभी कह पाएंगे जब उस पर कोई एक्सटर्नल पावर अपना कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं कर रही हो. यानी कि when there is no external power practicing its external controls over any individual, then that particular individual could be considered free. Yeah, then that particular individual could be considered with freedom itself. On the basis of which that individual is able to make independent decisions, जिसके बेसिस पर वो इंडिविजुअल अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने की ताकत, लेने की क्षमता रखता है. टू एक्ट इन एन ऑटोनॉमस वे, जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी को अपने ट्रिगर से, अपने कंट्रोल से, अपने रिमोट से रन कर सके. ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ ट्रिगर्ड, सेल्फ रिमोटेड. So I think the first statement, which is here the first aspect of freedom, which says that there is absence of external constraints, then we say that the individual is free, directly means where an individual becomes free. When say that individual is free, then we mean by saying this that he or she is not subjected to any external control or any external power or any external jurisdiction, on the basis of which that individual is able to make independent decisions, to act in an autonomous way according to his will or according to her will. His will if he is a man, her will if she is a woman. Now, second aspect of freedom, the existence of conditions in which people can develop their talents. एक तो फ्रीडम का मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल पर बाहर के कोई कंट्रोल्स ना हो, जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी को अपनी मर्जी से बिल्डअप कर पाए. ये हमने पढ़ लिया. Second aspect of freedom, which creates the basic definition of freedom more ethically, क्या है? ये है the existence of conditions in which people can develop their talents. यानी कि जहां पर लोग रहते हैं वहां पर कंडीशंस इस तरह की एग्जिस्ट करती हों, जहां पर लोगों का जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट को अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग डेवलप भी कर सकें, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रमोट भी कर सकें, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको इजेक्ट भी कर सकें, रिप्रेजेंट भी कर सकें, प्रेजेंट भी कर सकें, एक्सप्लोर भी कर सकें. अगर ऐसा है तो वहां पर फ्रीडम है, जहां पर ऐसा है. और अगर वहां पर फ्रीडम है तो वहां के लोग फ्री कहे जा सकते हैं. यानी कि सिंपली the existence of conditions in which people can develop their talents freely without any absurd, without any hurdles, then we can say the freedom exists. आप कहोगे थोड़ा सा सर रेफरेंस से समझा दीजिए तो शायद बेहतर समझ में आ जाए. Let's take it through a reference. For extending the ability of the people to freely express them and develop their potential. आप कहोगे सर ठीक है, we need the absence of external constraints so as to practice our personality, so as to make our personality by using self remote, by using self control, by own self, by oneself, by our own will. ये समझ में आता. मगर इन कंडीशंस को क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्रीडम में कि जिससे कि हम अपने टैलेंट्स को डेवलप कर पाए? वो तो पहले में आ जाना चाहिए ना सर. जब आप पर कोई एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट है ही नहीं तो आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कि ऊपर जब हमने बात की थी द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स, वो बात हो रही थी एज एन इंडिविजुअल कि एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट शुड बी एब्सेंट व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग योर फ्रीडम एज एन इंडिविजुअल. एंड ये जो सेकंड फैक्ट की हम बात कर रहे हैं
ये बात हो रही है व्हेन यू आर लिविंग एज एन इंडिविजुअल, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एज अ पार्ट ऑफ द कॉलोनी और द स्टेट और द नेशन। यानी कि नेशन, कॉलोनी, सोसाइटी जहां पर आप रहते हैं वहां पर एनवायरमेंट फ्रीडम होना चाहिए, भी तो आप एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स की एब्सेंस अपने टैलेंट को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसका मतलब अब मैंने कह दिया कि ठीक है, यू आर कंप्लीटली फ्री टू एंजॉय फ्रीडम, you are completely free to enjoy freedom. Supposingly within a village I am a sarpanch of some village मैं किसी गांव का सरपंच हूं, सबको अपनी फ्रीडम एंजॉय करने का अधिकार है, मैंने सबको बोल दिया साहब, और मैंने गांव के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जबरदस्ती विदाउट एनी रीजन। तो यानी कि आई हैव डिस्टर्ब्ड द एनवायरनमेंट एज अ सोसाइटी, एज अ कॉलोनी, एंड आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम एज एन इंडिविजुअल। हाउ कैन यू एंजॉय फ्रीडम एज एन इंडिविजुअल if the system in which you are living, their environment is not of freedom, yani ki their environment of freedom is absent. So that's why both these points are equally important, because why the existence of conditions is necessary for the people to develop their talents, जिससे कि लोग अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस फ्रीली करना सीखें और अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को डेवलप करने का उनको चांस मिले। किसी को एक्टर बनना है, चाहे उसको उसके अंदर टैलेंट हो या ना हो, उसको मौका तो मिलना चाहिए ना। बट वो सबको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं भाई ठीक है इफ दिस पर्सन इज ऑफ दिस कास्ट देन यू आर फ्री टू डू दिस थिंग, एंड इफ अ पर्सन इज फ्रॉम अदर कास्ट यू आर नॉट फ्री टू डू दिस थिंग, ऐसे तो होता नहीं। Supposingly in some villages if I say that in temples the people from this caste can enter and the people from this caste cannot enter, how can you say that you are saying that an individual can enjoy its freedom when you are hurting the conditions of the society in which that individual is living upon? आप उस समाज को ही फ्री नहीं रहने दे रहे हैं जिस समाज में वो इंसान रह रहा है, तो उस इंसान से आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो इंसान अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर लेगा? So that's why I think you must have understood now on a very clear basis कि both these points are relevant and both these points are complementary to each other. यानी कि इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? Means the condition in which the people can develop their creativity and capability. Simply, second point in simple words, what does it mean? यानी कि simply the conditions in which the people can develop their creativity and capabilities needs to be developed as an environment. Then only we can expect an individual to enjoy its freedom, free from external constraints, free from external restrictions, free from external obligations. एनवायरनमेंट आपने ऑब्लिगेटेड बना रखा है एंड यू आर प्रमोटिंग योर इंडिविजुअल, बेटा आप अपनी फ्रीडम एंजॉय करो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। हाउ? बात ये हो रही है द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, बाहर के कॉन्स्ट्रेंट्स ही तो हमें हटाने हैं, बाहर का कोई हम पर कंट्रोल ना प्रैक्टिस करे, यही तो फ्रीडम है। और अगर आपके एनवायरनमेंट में ही वो चीज नहीं है तो इसका मतलब एक्सटर्नली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक एक्सटर्नली नॉन कंट्रोल्ड इंडिविजुअल कैसे रह लेगा नॉन कंट्रोल्ड एक्सटर्नली? Because the environment is directly controlling that individual through a system. Then how can you expect an individual to be control free of external factors? Note, both the above aspects are equally necessary for the existence of freedom. इसका मतलब basically मुझे short में क्या समझ में आया? Simple in basic terms, I am able to understand by studying these two basic aspects of freedom that for freedom of any individual, for freedom of any freedom, or for existence of freedom of any individual, both these above aspects are equally necessary. If any of these two aspects is absent, then you cannot expect an individual to be free, then you cannot expect the system that their freedom will be existing upon. Now taking fact check ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ऊपर जो हमने पढ़ा उसका फैक्ट चेक करते हैं कि सर जो हमने पढ़ा वो क्या था और जो हमें समझ में आया वो क्या है। तो फैक्ट चेक है जो हमें समझ में आया। क्या समझ में आया? Means free society would be one which enables all its members to develop their potential with the minimum of social constraints. यानी कि अभी तक की जो हमारी 3 to 4 पेज स्टडी है, ऑन दैट बेसिस हमें अभी तक फ्रीडम क्या समझ में आ रहा है? हमें सिंपल ये समझ में आ रहा है उससे कि यानी कि सर फ्रीडम का मतलब होता है एक फ्री सोसाइटी। मैं कहूंगा अगर आपको इतना समझ में आया है तो थोड़ा इसको एलैबोरेट करें। तो आप कहोगे सर फ्री सोसाइटी मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी
जहां पे उस सोसाइटी के सभी मेंबर्स को, उस सोसाइटी के सभी रेसिडेंट्स को, उस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट होने वाले, रहने वाले, करने वाले सभी इंडिविजुअल्स को पूरी फ्रीडम मिले अपने पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने टैलेंट्स, स्किल्स को डेवलप करने के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड विद मिनिमम सोशल कॉन्स्टेंट्स। यानी कि यहां क्या कहा गया है कि एक ऐसा समाज जहां पर सबको फ्रीडम हो अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स, अपने अपॉर्चुनिटी को स्केल आउट करने के लिए, मगर सोशल कॉन्स्टेंट्स उस पर हो, बट मिनिमम हो, जितने जरूरी हैं उतने हो। जो जरूरी कॉन्स्टेंट नहीं है, जो जरूरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो जरूरी बाउंडेशन नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। मगर जरूरी बाउंडेशन जो वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरूरी बाउंडेशंस नहीं हो देन फ्रीडम विल बी करप्ट, तब वो फ्रीडम करप्ट हो जाएगी। As no individual living in the society can hope to enjoy total absence of any kind of constraints or restrictions. Now you can ask me a question कि सर जो आप कह रहे हो कि यानी कि हमें फ्रीडम से समझ में आया that we expect, मतलब by saying freedom we expect a free society where everyone has the capability, everyone can obtain a chance, every member, every single individual living in the society will be enabled to develop its potential with the minimum of social constraints. मैं कहूंगा yes, I have told you this only. नाउ आप कहेंगे सर ये कॉन्स्टेंट्स आप तो कह रहे थे ऊपर कि होने नहीं चाहिए, एब्सेंस होना चाहिए। अरे भाई, किसी चीज के एब्सेंस होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज खत्म ही कर दो आप। यानी कि पॉजिटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि नेगेटिव साथ में ना लो आप। अंडरस्टूड? एवरी कॉन्सेप्ट हैज बोथ द एस्पेक्ट्स। हर चीज के दो पहलू लेकर चलने पड़ते हैं। आपको वन साइडेड नहीं हो सकते आप। अगर आप वन साइडेड हो गए देन द रिजल्ट्स विल बी आल्सो वन साइडेड। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, आपकी फ्रीडम पर कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, तो फिर वही बात होगी ना, हर आदमी अपनी पावर के हिसाब से फ्रीडम को यूज करेगा और फिर क्या होगा, फिर वही टाइम आ जाएगा एक आदमी दूसरे की फ्रीडम को हर्ट करे। आप कहोगे कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आई टोल्ड यू एन एग्जाम्पल, या आई टोल्ड या ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड विद अ रेफरेंस ऑन सम डे। एक दिन मैंने आपको ये समझाने की कोशिश भी की थी कि आप गाड़ी 300 पर भगा रहे हैं, सामने वाला पैदल आदमी आ रहा है, आप उसको हिट कर दें, तो ये कौन सी फ्रीडम आप एंजॉय कर रहे थे? और उस बेचारे की क्या गलती थी भाई? यानी कि अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो, अगर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की पनिशमेंट ना हो, तो फिर तो आप जो है जिसकी मर्जी होगी वो वैसे गाड़ी चलाए। अरे भाई, रूल्स हैं तो भी लोग करते हैं इस तरह की गलतियां। सोचिए अगर रूल्स ना हो, सोचिए अगर वहां पे कॉन्स्टेंट्स ना हो, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस ना हो, तो फिर तो कुछ लोग पागल ही हो जाएंगे। एंड फॉर जस्ट द सेक ऑफ सो कॉल्ड देयर फ्रीडम, दे विल बी हर्टिंग द फ्रीडम ऑफ एवरी सेकंड पर्सन। हर दूसरे आदमी की फ्रीडम की वो फ्रीडम को वो आई थिंक खत्म करते फिरेंगे। तो इससे आप सोचिए सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, सोशल ऑर्डर कंस्ट्रक्ट होगा। Therefore, in a very simple way, we can say that no individual living in the society can even hope to enjoy in the total absence of any kind of constraints or restrictions. अगर आज आपको घर में मदर फादर आपको बिल्कुल टोकना बंद कर दें, तो वो लाइफ आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपको लगेगा हमें मम्मी पापा क्यों नहीं बोल रहे हैं, और अब जब बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है। तो आई थिंक यू शुड, यही तो बात है ना, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, कि फ्रीडम कहाँ मिलनी चाहिए, कहाँ नहीं मिलनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है भाई। क्योंकि जेल में रहने वाले कैदियों को भी जो है ना, दिन में 3 बार जेल से बाहर निकलकर धूप लेने के लिए, हवा लेने के लिए, बाहर के आसमान की रोशनी लेने के लिए फ्रीडम दी जाती है। जेल में बंद है तो इसका मतलब ये नहीं उनका कोठरी के अंदर बंद कर दिया एंड देन व्हेन योर पनिशमेंट विल बी ओवर देन ओनली यू विल बी अलाउड टू इजेक्ट आउट ऑफ दैट। यानी कि फ्रीडम की डेफिनेशन समझना जरूरी है, दैट इफ यू आर living in the society, what does that freedom mean, where that freedom needs to be constricted, where that freedom needs to be constrained, and where that freedom needs to be explored। ये आपको पता करना है, ये आपको जज करना है। यानी कि जो मैंने आपको बात अभी बता दी वो बुक अब बता रही है आपको, अकॉर्डिंग टू द नोट्स, नेसेसरी टू डिटरमाइन दैट विच सोशल कॉन्स्टेंट्स आर। इसका मतलब हमें पता करना पड़ेगा that living in a society as a social entity, as a social individual, we must know that what constraints should be on the freedom as a social entity on ours। यानी कि सोशली हमारी फ्रीडम पर कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स जरूरी हैं,
ये हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए उन सोशल कॉन्स्टेंट्स के बारे में? पहला पॉइंट दैट विच सोशल कॉन्स्टेंट्स आर जस्टिफाइड, ये हमें पता होना चाहिए, एंड विच आर नॉट, ये भी पता होना चाहिए। यानी कि कौन से रेस्ट्रिक्शन सही है, कौन से रेस्ट्रिक्शन गलत हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड, कौन से रेस्ट्रिक्शंस एक्सेप्टेबल हैं, कौन से रिमूव होने चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि विच आर एक्सेप्टेबल, विच आर नॉन एक्सेप्टेबल, ये भी पता होना चाहिए। थर्ड, विच आर नेसेसरी, यानी कि कौन से रेस्ट्रिक्शंस नेसेसरी हैं। ये तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। यानी कि वही चीज है कि एक बहुत ही आपको अच्छी चीज मिली है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों पता होने चाहिए, बिकॉज if only positive you will be thinking upon, then that negative will be in building you upon, and if you on and only